Hello children, let us come to last topic of this chapter, that is DNA fingerprinting. Last time we have discussed that among individuals or among humans, 99.9% of base sequence they are same. So only there is a difference of 0.1%. So it is these differences in the sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. So if our aim is to find out the genetic difference between the two individuals or among the individuals of the population. Now if we do it by sequencing the DNA, it's not possible. So how can we compare 3 into 10 raised to power 9 base pairs of two individuals every time? So DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequence of any two individuals. DNA fingerprinting that involves identifying differences in some regions, not in all the DNA but only in some specific regions जिनको हम कहते हैं repetitive DNA. So we want to know the differences only in some specific regions, that is a repetitive DNA, because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. These repetitive DNA, they are different from the other DNA or the bulk DNA. They form different peaks. Bulk DNA form a major peak और बाकी ये repetitive DNA जो हैं they form small peaks जिनको हम कहते हैं satellite DNA. अब सैटेलाइट डीएनए भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी लेंथ कितनी है, उनकी बेस कंपोजिशन क्या है, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट क्या है. दे आर नोन एज माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स. यूजुअली ये जो रिपीट्स होते हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स, सो दे आर द non-coding portions, but they are the major portions of human genome. अब इसको हम basis क्यों बनाते हैं? Because these sequences they show high degree of polymorphism and they form the basis of DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting is a technique by which we can find out variations in the individuals of a population at DNA level. DNA level की variation हम देखते हैं. This was first developed by Alec Jeffrey. तो principle इसका क्या है? Polymorphism. तो लास्ट में भी पिछले उसमें भी हमने किया था. Polymorphism क्या होता है? Difference in the nucleotide sequence. DNA polymorphism is any difference in the nucleotide sequence between the individuals. तो ये जो difference है, it can be single base pair changes or deletion, some insertion or some changes in the number of copies of the given DNA sequence. So DNA fingerprinting that involve identifying differences in these short nucleotide repeats जिनको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. VNTR they vary in number from person to person and they are inherited. VNTR of 2 person may be of same length and sequence at some places but vary at others. Now, so polymorphism, that is the main basic principle in the DNA fingerprinting. So polymorphism का meaning क्या है? Variation at the genetic level, चाहे वो mutation से है या single base pair में है. So ये हम compare करते हैं of the two individuals. Different steps of the fingerprinting are
सबसे पहले जो है isolation of the DNA, extraction and isolation of the DNA. DNA is extracted and isolated from the cells. Now, DNA from every tissue from an individual show the same degree of polymorphism. हम कहीं से भी किसी एक इंडिविजुअल में कहीं से भी डीएनए लें, चाहे वो हम ब्लड से लें, हेयर फॉलिकल से लें, स्किन से लें, बोन से लें, स्लाइवा से लें, मतलब किसी भी टिश्यू से लें, उनका पॉलीमॉर्फिज्म सब जगह सेम होगा. So this is very useful identification tool in the forensic application, क्योंकि even from the single drop of blood we can do the DNA fingerprinting. तो DNA सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं जो भी सेल से हमने लेना है, क्योंकि हम बहुत कम अमाउंट से भी कर सकते हैं. तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन, यानी कि उस अमाउंट को हम बढ़ा देते हैं. एम्प्लीफिकेशन and many copies of DNA they are made by polymerase chain reaction. This we will study in detail in biotechnology. तो हम जो भी थोड़ा सा भी DNA होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं. Then next step is digestion of this DNA with the help of special enzyme. Again there are some specific enzymes जिनको हम कहते हैं restriction endonuclease. Endonuclease is, again this will we discuss in detail in the biotechnology chapter. तो ये एंजाइम है न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले, तो which can cut the DNA into fragments. तो छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेशन ऑफ DNA sequences. जो कट फ्रेगमेंट्स है दे आर सेपरेटेड by a process known as electrophoresis. All these steps we are going to do in detail in the biotechnology unit. So they are separated by a process that is known as electrophoresis. Is then separated DNA fragments, they can be visualized by staining them with a dye that shows fluorescence under ultraviolet radiation. इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम एक प्रोसेस करते हैं सदरन ब्लॉटिंग. जो डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर हम एक नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन मेम्ब्रेन प्लेस कर देते हैं, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो उस नाइलोन मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर स्टिक कर जाते हैं. नेक्स्ट इज नाइलोन मेम्ब्रेन इज इमर्स्ड इन अ बाथ ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब्स. हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेडियो एक्टिव प्रोब्स. तो एलिक जेफरी ने यूज़ किया था सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब दैट शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो उन्होंने रेडियो लेबल्ड VNTR यूज़ किया एज अ प्रोब, यानी कि बाहर से एक डीएनए सेगमेंट या सैटेलाइट डीएनए यूज़ किया जिनके उनको सीक्वेंस पता थे. So nylon membrane is immersed in a bath of radioactive probes. These probes target a specific nucleotide sequence that is complementary to them. तो इसका सीक्वेंस उनको पता था. इसके बाद ये हाइब्रिडाइज करेंगे जो भी फ्रेगमेंट्स हैं उनके साथ. कहाँ पे हाइब्रिडाइज करेंगे, जो बेसिस उनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. जब प्रोब का सीक्वेंस उनको पता है तो उनको फ्रेगमेंट के बेसिस का सीक्वेंस भी पता चल जाता है, क्योंकि वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ही हाइब्रिड बनाते हैं. देन दीज हाइब्रिड्स दे कैन बी ऑब्जर्व्ड with the X-ray film after staining, and they develop at the they resemble as the barcodes. तो ये एक बैंड्स की तरह जो है वो अपीयर होते हैं और फिर इन फ्रेगमेंट्स को ऑटो रेडियोग्राफी से हम देख सकते हैं. So VNTR, that is very important. It is a class
ऑफ सैटेलाइट डीएनए, जिसको मिनी सैटेलाइट कहते हैं, VNTR की डिफरेंट कैटेगरीज होती है सैटेलाइट डीएनए की, तो ये भी सैटेलाइट डीएनए की ही क्लास है जिसको मिनी सैटेलाइट कहते हैं। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers. Copy number जो होता है that vary from chromosome to chromosome in an individual and it show high degree of polymorphism. अब साइज कितना है VNTR का? It varies from 0.1 to 20 kb. अब इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे उनके बैंड्स का साइज भी अलग अलग होगा। तो जस्ट वी सी विद द डायग्राम, ये तो एक सिंपल प्रोसेस दिखाया कि डीएनए को हमने, ये ब्लड सैंपल है, इसमें से हमने ब्लड के सेल से एक डीएनए निकाला, ठीक है। डीएनए को हमने छोटे छोटे पीसेस, ये डॉटेड लाइन दिखाई है, फ्रेगमेंट्स में चेंज किया। अब ये फ्रेगमेंट्स को इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में डाला और उसके बाद इनको सेपरेट किया। बाकी हम इसका प्रिंसिपल अगले उसमें पढ़ेंगे कि जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं, जो बड़े होते हैं वो स्लोअर मूव करते हैं। इस तरह से वो जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। जब ये सेपरेट हो गए, इनके ऊपर हमने सदरन प्लॉटिंग यानी कि एक नाइलॉन शीट डाली, उसके ऊपर ये स्टिक कर जाते हैं फ्रेगमेंट्स। दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल टू द नाइलॉन शीट। उसके बाद हमने बाहर से जिसका प्रोब डाला, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब, यानी कि VNTR आर यूज्ड एज ए प्रोब। सैटेलाइट डीएनए ही हमने यूज़ किया एज अ प्रोब। इसका सीक्वेंस हमें पता है, हमने इसको इसके अंदर डाला नाइलॉन शीट के। नाउ अब डीएनए प्रोब बाइंड्स इन स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में ये कहीं कहीं बाइंड कर जाता है। कहाँ बाइंड करेगा? जहाँ पे इसके बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और फिर जब हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी से देखते हैं, देन दीज अपीयर एज द बैंड्स। तो एक्सरे फिल्म इसके ऊपर रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें ये बैंड्स की तरह ये जो है वो नज़र आता है। So this we can show with a simple diagram, and this now one more is there where it is used, and it is used for the different purposes. So this is shown that एक example दिया हुआ, this is the example from your textbook, that this is the chromosome number 10, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7। ये इनके जैसे रिपीट्स दिखाए हैं, 3 रिपीट्स, 4 रिपीट्स, और यहाँ पे आप काउंट कर लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिपीट्स। तो ये डिफरेंट रिपीट्स दिखाए हैं। सो दे आर द होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इवन दीज रिपीट्स दे वेरी इन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड दीज रिपीट्स वेरी इन 1 to 2 इंडिविजुअल। तो ये मान लो कि रिपीट्स हैं एक इंडिविजुअल A के, और ये रिपीट्स हैं इन अ इंडिविजुअल B। तो ये देखो क्रोमोसोम नंबर 16 दोनों का ये डिफरेंस दिखा है, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7। और ये रिपीट्स फिर से मैं बता रही हूँ कि दे डू नॉट कोड फॉर द प्रोटीन। ज़्यादातर डीएनए हमारा इन्हीं रिपीट से ही बनता है, बट दे डोंट कोड फॉर द डीएनए, बट दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आप आसानी से ये देख सकते हो और रिपीट्स किस तरह से ये दोनों में, इवन पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम में भी ये डिफरेंस है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 है, तो ये दोनों में डिफरेंस, और 2 इंडिविजुअल्स में डिफरेंस तो है ही है। जब हम इनकी बैंडिंग होती है ऑटो रेडियोग्राफी, तो ये इस तरह से नज़र आता है। ये देखो क्रोमोसोम नंबर 7 ये रेड कलर का जो दिखाया है, फिर येलो, और फिर ये जो है लाइट ब्लू कलर का, ये 3 क्रोमोसोम दिखाए हैं। ये इनके जो है वो रिपीट्स, इंडिविजुअल A,
इंडिविजुअल बी में क्रोमोसोम नंबर 7 जो रेड कलर का है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 10 रिपीट्स और ये 8-9 रिपीट्स यहाँ पे आ रहा है। और इस इंडिविजुअल के रिपीट्स जो हैं ए इंडिविजुअल के सिर्फ 2-3 और ये 4, तो ये 3 और 4 पे आ रहा है। तो ए और बी में कितना डिफरेंस है, ये क्रोमोसोम नंबर 7 का बैंड यहाँ बन रहा है और यहाँ क्रोमोसोम नंबर 7 का बैंड यहाँ बन रहा है। और कहीं कहीं जगह सिमिलर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, यहाँ पे भी डिफरेंस है एक क्रोमोसोम में, बट फिर भी बहुत सारी सिमिलरिटी है। इसी तरह ब्लू वाला है, ठीक है। तो मान लो हमें एक क्राइम साइट से एक इंडिविजुअल का ब्लड ड्रॉप मिलती है, हम उस ब्लड ड्रॉप से उसके ये क्रोमोसोम और जो है हम स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं उसके बेंडिंग पैटर्न। तो जो थर्ड इंडिविजुअल सी जो हमें क्राइम ब्रांच से मिला, तो इसका बेंडिंग पैटर्न ऐसा नज़र आया। क्रोमोसोम नंबर इसका 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16। तो यहाँ इसका बेंडिंग पैटर्न, अगर हमें ये 2 डाउटफुल क्रिमिनल है तो हमें पता चल जा रहा है कि इट मैचेस विद द इंडिविजुअल B. So we can identify this is criminals easily. So in this way we can use the DNA fingerprinting process as in for the various purposes. Now for the different purposes we can use the DNA fingerprinting process. It is used to identify criminals, rapists. It is used to solve पैटर्नल इश्यूज़। तो पेरेंटल इश्यूज़ जहाँ भी होते हैं, यानी कि डिस्प्यूट्स होते हैं, वी वांट टू नो द बायोलॉजिकल फादर्स देन और बायोलॉजिकल मदर्स, देन वी कैन आइडेंटिफाई with the help of DNA fingerprinting. Then to solve different immigrant problems, this can be used to identify dead bodies of soldiers died in the wars, to identify dead bodies of persons died at accidents and bomb blasts, then to identify racial groups, to rewrite biological evolution, inheritable disorders, and to detect donor cell in case of transplantation. So there are so many uses of DNA fingerprinting. Earlier they was used to apply fingerprints, but fingerprints again that can be changed. So DNA fingerprints, that is a very appropriate way, and that is a quick way by which we can solve so many problems. Thank you so much.